I'm Dr. Nandini from the National Institute of Health and Family Welfare. It is a privilege for me to introduce today's topic to our dedicated frontline workers who stand as our first line of care, courage, and calm in every emergency. Friends, as you all know, in a crisis situation, every minute, even every second matters. And often crisis is not inside the hospital walls, but outside in the field where lives are truly saved. Today's topic, pre-hospital care and safe transport, is more than just a protocol. It is about people. It is about how you, the first responders, become the critical link between injury and survival, between chaos and coordinated care. Today's session is going to be a space for learning, reflection, and readiness. We are honored to have with us Dr. Vineet Chandran from AIIMS, Delhi. He is a well-known expert in emergency care. His extensive experience promises to give us meaningful insight that you can apply directly in the field. Before we begin, a small note. Kindly mute your phone. If you have questions during the session, just drop them in the chat box and it will be covered during the question answer session if time permits. Now, without further delay, let's begin. Dr. Vineet Chandran, the floor is yours. Kindly start your session. Thank you, madam. Thank you for the introduction. So, good morning, myself, Dr. Vineet Chandran. Morning, myself, Dr. Vineet Chandran. I am Assistant Professor in the Department of Emergency Medicine at AIIMS, New Delhi. So today I'll be discussing regarding pre-hospital care and safe transport for frontline workers. So I'll try to keep it bilingual. I'll speak in both English and Hindi. And as Madam has already mentioned, if there are any questions, we'll take it at the last. Okay. So we are majorly focusing on three things today. One is clinical care when you have an acute situation like a trauma or a cardiac arrest or some kinds of bites and stings and some miscellaneous conditions. Then we'll focus a bit on triage and also how the workflow pattern should be when it comes to an emergency. So firstly, we'll go to the clinical care part. So I'll just narrate a scenario. There is an explosion happened in a nearby market and you go to that place. You are deployed to that space. And you have a team of doctors and nurse and you are seeing the first case. And you have a middle-aged man who is drowsy with gurgling sounds, bleeding from left leg. And how will you manage that case, or how will you go about that case? How will you approach that case? So the basic principle in any pre-hospital care, the approach in any pre-hospital care is first and foremost is the scene assessment for safety. So you should make sure that the scene is safe for yourself or आपके साथ वाले जो आता है, it should be safe for them. And then you do a quick primary survey. Then you do the critical intervention, resuscitation, triage, and आप transport करोगे. कहाँ जाना है, hospital जाना है या किस center में जाना है, उसका decide करोगे आप. So we'll go through all these four. ये चारों में we'll go through those four parts. See what all things can be done in a pre-hospital scenario. So, as in any resuscitation or as in any scenario, always the resuscitationist or those who is coming to help, uska sabse bada important hai. He is the most important person because already there are मरीज है और आपको भी कोई safety issue है तो आप भी मरीज बन जाए. So it is always important कि provider का safety is almost always important. तो एक blast है या fire है तो आपको जाके अंदर घुसना नहीं, आपको देखना है कि आप
सेफ है अंदर जाने का, या आप सीन में जाने के लिए आप सेफ है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड दैट गोज फॉर ऑल काइंड्स ऑफ resuscitation और ऑल काइंड्स ऑफ हेल्थ। अनलेस आप हॉस्पिटल के अंदर है, पेशेंट आपके वहां आता है, तो आपको पता है कि आपका जगह सेफ है। बट आप कहीं जाता है, बाहर जाता है, तो यू मस्ट मेक श्योर कि वहां सेफ है। इफ समवन इज ड्राउनिंग, कोई पानी में है और आपको तैरना नहीं आता, तो यू शुड इन जंप एंड हेल्प हिम। You should make sure that the patient and yourself are safe. So first and foremost is the safety of the provider. Next is safety of the scene. If the scene is safe enough, जैसे मैंने बोला, आपको तैरना नहीं आता है और उसमें शॉक भी लगाया है, तो you won't go and immediately jump into the water and trying to save that patient. So आपका सीन सेफ है वो देखना चाहिए। एंड तीसरा है सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। और जब आप पेशेंट को हेल्प करने के लिए जा रहे हो, यू शुड मेक श्योर आपका थोड़ा सा कोई प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, जैसा कोई ग्लव्स पहन सकते हैं या मास्क पहन सकते हैं, ऐसा कुछ आपको ऑप्शंस है तो वो भी जरूर आप करने चाहिए। तो आपने देखा, आपका सीन सेफ है, आप जाने के लिए आप सेफ है, ये आप इंश्योर किया, तो वहां जाके आप क्या करोगे? तो हमारा मेजर रिससिटेशन हम बोल रहे हैं XABCDE। XABCD। एक्स है एक्सैंगुनेटिंग हेमरेज। आप पेशेंट का कहाँ कटा हुआ है और ऐसा खून बह रहा है, इफ देयर इज एक्सैंगुनेटिंग हेमरेज, ब्लीडिंग ऐसा ही चल रहा है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको वो रोकना चाहिए। क्योंकि हम इसका बहुत सारे रिसर्च वगैरह हुआ है, उसमें बोल रहा है कि आप पहला ब्लीडिंग रोको, तभी पेशेंट को बचने को आपको पेशेंट रह जाएगी आपको बाकी काम करने के लिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू स्टॉप द ब्लीडिंग। आप कुछ भी ब्लीडिंग है तो वो पहले स्टॉप करना चाहिए। नेक्स्ट इज टू मैनेज द एयरवे। तो आपका सांस का रास्ता में कोई तरफ का ब्लॉक इन दैट, उसको आपको ठीक करना चाहिए। और आपका स्पाइन भी साथ साथ आपको उसका रक्षा करना चाहिए, क्योंकि स्पाइन में आपका किसी तरह का कोई इंजुरी होता है तो पेशेंट पैरालाइज हो जाएगा, लाइफ टाइम ही वोंट बी एबल टू मूव। और ऐसा ही बोलता है कि स्पाइन का इंजुरी जैसे कोई भी ट्रॉमा होता है, तो स्पाइन का इंजुरी सिर्फ इंजुरी की वजह से नहीं होता है, पेशेंट को अनसेफ हैंडल करने की वजह से होता है। तो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप जो भी कर लो उसके साथ साथ स्पाइन का भी स्टेबिलाईजेशन के लिए आप देखना चाहिए। बी इज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में वेंटिलेशन और ऑक्सीजनेशन आपको ठीक करना होगा। सर्कुलेशन में आपका ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए और फ्लूइड्स वगैरह देने के लिए आपको देखना होगा। डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर उसके बारे में हम बता देंगे। तो वील गो वन बाय वन। तो पहले आपको कोई पेशेंट एक्टिवली ब्लीड कर रहा है तो उसमें आप क्या करोगे? एयरवे मैनेजमेंट में आप क्या करोगे? ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, एक्सपोजर में आपको प्री हॉस्पिटल में क्या क्या कर सकते हैं, ये सब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो ये ABCD आपको 10 सेकंड में कैसे असेस कर सकते हैं? एक पेशेंट है, आप मरीज के सामने जा रहे हैं, तो आपको 10 सेकंड में कैसे असेस कर सकते हैं कि पेशेंट का ABCD ठीक है? ये ABCD ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि A किल्स फर्स्ट। आपका एयरवे में कोई दिक्कत है तो दैट विल किल फर्स्ट। आपका एक्टिवली ब्लीड हो रहा है, आपका बड़ा एक आर्टरी, बड़ा एक नस कटा हुआ है, तो वहां से ब्लीडिंग से आपको पहला मृत्यु होगा। नहीं तो एयरवे में कोई तरह सा ब्लॉकेज है तो उसी से आपको डेथ होगा। उसके बाद ही ब्रीथिंग में कोई दिक्कत है तो डेथ होगा, उसके बाद ही सर्कुलेशन में इश्यू होगा। तो ये XABCD इसलिए बोल रहे हैं कि आपका पहला डेथ किस वजह से होगा, उसी वजह से हम XABCD बोल रहे हैं। तो एक पेशेंट के सामने आप जा रहे हैं तो कैसे आपको असेस कर सकता है कि पेशेंट का ABCD ठीक है? तो एक ही चीज है, आप इंट्रोड्यूस करो, अपना नाम बताओ और उसको उसको पूछो कि उसका नाम क्या है। इफ द पेशेंट इज एबल टू से उसका नाम है सो एंड सो, उसका नाम है राम है, उसका नाम है मोहम्मद है, वो जो बोल पा रहा है, तो उसका मतलब है कि उसको बोलने के लिए उसका एयरवे क्लियर है, उसको बोलने के लिए उसका लंग्स का कैपेसिटी ठीक है, और उसका ब्रेन में परफ्यूजन चल रहा है, क्योंकि इसी वजह से उस हमने हमारा जवाब उसने सुना और उसका जवाब वो बोल रहा है, और हम हमारा सवाल उसने सुना और जवाब बोल रहे हैं, और उसका ब्रेन भी ठीक है। तो उस टाइम में उसका ABCD ठीक है, वो हम असेस कर सकते हैं जस्ट बाय आस्किंग हिज नेम और टेलिंग हिम टू से व्हाट हैपेंड, आपको क्या हुआ, कहाँ चोट लगी, ये पूछने से थोड़ा सा हमें एक आइडिया मिल सकता है।
हो सकता है कि नेक्स्ट 10 सेकंड में पेशेंट का एबीसीडी खराब हो सकता है, बट उस सेकंड या उस टाइम में हमें पता सकता है कि पेशेंट का एबीसीडी ठीक है। तो क्विकली आपको एबीसीडी असेस कर सकते हैं और आपको देख सकते हैं कोई भी ब्लीडिंग ऐसा हो रहा है तो एक्टिवली ब्लीडिंग कहीं से हो रहा है, ऐसा पेशेंट जहां पड़ा हुआ है वहां सारा ब्लड है, ब्लड ऐसे ही चल रहा है आगे आ रहा है, तो उसको आपको रोकना है, स्टॉप करना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और कैसे आप रोकोगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज गिविंग अ डायरेक्ट प्रेशर, जैसे वो पिक्चर में दिखाया है। डायरेक्ट प्रेशर देने से, जैसे आप डायरेक्ट प्रेशर देने से आपको 90% ऑफ द ब्लीड आपको रोक सकते हैं। बट फिर भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ब्लीडिंग होगा, जैसे इस पिक्चर में है, ओपन वूंड है और यहाँ से ऐसे ही ब्लीडिंग आ रहा है, उसमें आपको डायरेक्ट प्रेशर देने से शायद रोक नहीं पाओगे। ऐसा है तो आपको कोई ना कोई टूरनिके लगा सकते हैं। इसमें तो फोलिस कैथेटर टूरनिके जैसे लगाया है, आपको भी कोई ना कोई टूरनिके लगा सकते हैं। बट आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि टूर्निके ज्यादा टाइम के लिए रख नहीं पाओगे, मैक्सिमम 30 मिनट्स, मैक्सिमम 1 आवर। क्योंकि क्या होता है, आप टूर्निके लगाओगे, नीचे का ब्लड सप्लाई नहीं होगा और उसकी वजह से नीचे का कुछ भी बच रहा है वो भी खराब हो जाएगा। तो आप टूर्निके लगाता है तो मैक्सिमम 30 मिनट्स को ही लगाना है। तो जब आप टूर्निके लगाया है उसका टाइम आपको नोट करना है। आपका एक्टिव प्रेशर से ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपको टूर्निके लगा सकते हैं, बट मैक्सिमम 30 मिनट्स टू 1 आवर। तो उसके टाइम के अंदर आपको हॉस्पिटल में पेशेंट को पहुंचाना है और हॉस्पिटल में बाकी केयर देना पड़ेगा। तो टूर्निके का यही राइडर है कि आपको देखना है कितना टाइम आप टूर्निके लगा रहे हो और एक टाइम के ऊपर आप टूर्निके लगा नहीं पाओ। ठीक है, तो उसके साथ साथ आपको वूंड पैकिंग के लिए और भी कमर्शियली अवेलेबल चीजें हैं, जैसे टूर्निके, एक्सट्रीमिटीज के लिए टूर्निके वगैरह है। तो बट आपको प्री हॉस्पिटल सिनेरियो में सभी टाइम ऐसा वाला चीज नहीं मिलेंगे, और आप कम्युनिटी से पेशेंट को अप्रोच कर रहे हैं तो आपको मिलने का चांसेस बहुत कम है। तो खाली प्रेशर ही देना, प्रेशर ही देने से 90% आपका ठीक कर सकते हैं। बट थोड़ा बहुत है तो उसमें टूर्निके भी लगा सकते हैं। बट ये सोच में रहना कि टूर्निके लगाने से आपको देखना चाहिए कि आगे का ब्लीडिंग आप रोक कर रहे हैं तो 30 मिनट्स के ऊपर आप वो कर नहीं पाओगे, ये टूर्निके लगा नहीं पाओगे। ओके, तो एक्स हमने बोला हाउ टू कंट्रोल द ब्लीडिंग, एक्सैंगुनेटिंग हेमरेज या अक्यूट ब्लीडिंग है तो आप कैसे कंट्रोल करोगे वो हमने बोला। नेक्स्ट है एयरवे, एयरवे विथ सी स्पाइन, एयरवे विथ सी स्पाइन। तो एयरवे ऐसा होता है कि जैसा आपका सांस का जो सांस का जो पाथवे है वही है हमारा एयरवे। तो आपका नोस और माउथ से स्टार्ट करके फेफड़ा तक जो जाते हैं वही होता है हमारा एयरवे। तो एयरवे में कोई भी दिक्कत होता है तो उसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने का दिक्कत हो सकता है, और वो ऐसा ही बंद रहता है तो विद इन 5 मिनट्स पेशेंट माइट डाई, पेशेंट का मृत्यु होने का चांसेस है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, प्री हॉस्पिटल में क्या कर सकते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि आपको असेस करना है कि एयरवे में कोई दिक्कत है। पेशेंट बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है एयरवे ठीक है, अभी के लिए एयरवे ठीक है। पेशेंट बात कर रहे हैं तो एयरवे इज क्लीन और एयरवे इज ओपन। बट आपको ऐसा कोई इंजरी दिख रहा है, पेशेंट का फेस में कोई ऐसा इंजरी दिख रहा है, तो उसका मतलब है कि एयरवे में इंजरी होने का चांसेस है। वो एक चीज है। दूसरा चीज है, आप जब सुनोगे, आपका कान में आप सुनोगे तो आपको कोई कोई साउंड्स आप सुनोगे। जैसे पेशेंट का एयरवे में कोई दिक्कत है तो कोई कोई साउंड्स आप सुनोगे, जैसे गर्गलिंग साउंड्स या स्नोरिंग साउंड, जैसे ऐसा स्नोरिंग वाला साउंड्स आप सुनोगे। या पेशेंट में कोई सिक्रीशंस है या वॉमिटस है, उसकी वजह से पेशेंट कुछ ठीक तरह से सांस नहीं ले पाओगे, तो दैट मीन्स पेशेंट का एयरवे में खतरा है। तो उससे भी आपको पता चलेगा कि एयरवे में दिक्कत होने का चांसेस है। और जब आप नेक में आप एक बार फील करोगे, पैल्पेट करके देखोगे, वहां कोई स्वेलिंग है जिसकी वजह से आपका एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन होने का चांसेस है, उसका मतलब है पेशेंट का एयरवे में दिक्कत होने का चांसेस है। तो आप लुक, लिसन और फील से पता कर सकता है कि एयरवे में कोई दिक्कत है। एयरवे में आप फेस में कोई इंजरी दिख रहा है, जैसे एयरवे के जगह में आप कोई इंजरी दिख रहा है, तो उसका मतलब है पेशेंट का इंजरी, एयरवे का इंजरी होने का चांसेस है। और नेक में या कहीं भी आपको इंजरी दिख रहा है तो दैट मीन्स एयरवे कैन बी अफेक्टेड। तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्री हॉस्पिटल में क्या कर सकते हैं? तो ट्रॉमा है तो मैंने जैसे बोला, पेशेंट का सर्विकल स्पाइन, सी स्पाइन, जो नेक का जो स्पाइन है उसका आपको कंट्रोल करना है।
बट आपको कोई ना कोई किसी तरह का सिक्रीशन है, मुंह में ब्लड है या मुंह में किसी तरह का सिक्रीशन है, तो वो तो आपको निकालना होगा। और आपको एयरवे ओपन करने के लिए एक मैन्यूवर है जो थ्रस्ट, जो इस वीडियो में दिखा रहा है। जैसे हम पेशेंट के फेस में हाथ रख के पेशेंट का मैंडिबल या पेशेंट का चिन को ऊपर करेंगे, तो क्या होगा कि चिन में ही हमारा जीभ अटैच्ड है, टंग अटैच्ड है। तो टंग आप पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है या पेशेंट का कोई स्नोरिंग साउंड आ रहा है, तो इसमें अटैच वाला जीभ पीछे चल जाता है और एयरवे को ब्लॉक करता है। तो आप ये चिन को आगे कर लेंगे तो उसकी वजह से आपका जीभ भी आगे आ जाएंगे और वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कम हो जाएगा। तो जॉ थ्रस्ट इज वन मैन्यूवर जिससे आपको एयरवे में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है या टंग की वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो आप ठीक करने का एक तरीका है जॉ थ्रस्ट से। हम नेक का कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहा है और उसकी वजह से आपका सी स्पाइन का कोई खतरा नहीं होगा, बट आपको एयरवे ओपन भी कर सकते हैं। तो एयरवे में कोई भी आपको ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई भी ब्लड कुछ है, तो आप कोई क्लोथ से आप वो निकाल कर सकते हैं और जोत्रस देने से आपको एयरवे ओपन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपका एयरवे ओपन करके रखने के लिए प्री हॉस्पिटल में और भी चीज होता है, जिससे इसको हम बोलते हैं ओपीए या ओरोफैरिंजियल एयरवे, जिसकी वजह से आपको एयरवे ओपन कर सकता है। जो ऐसे डाल के मुंह में रखते हैं तो एयरवे ओपन रह जाता है। तो एयरवे के साथ साथ मैंने बोला सी स्पाइन, सर्विकल स्पाइन, गर्दन का जो स्पाइन है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेन का सबसे बड़ा नर्व हमारे जो पूरा बॉडी का मूवमेंट के लिए जो नस जाता है वो ब्रेन से इसी तरह से हमारे स्पाइन इसी तरफ जाता है। तो यहाँ कोई भी चोट लगता है तो उसकी ये होगा कि पूरे फॉर दी लाइफ टाइम पेशेंट का हाथ और पैर हिल नहीं पाओगे और उसका संरक्षण करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो कैसे आप प्री हॉस्पिटल में संरक्षण करोगे, आप हाथ रखोगे पेशेंट के दोनों शोल्डर्स में, हाथ रख के आपका हाथ पेशेंट के सर के बीच में लाओगे तो उसकी वजह से पेशेंट का सर हिल नहीं पाओगे और पेशेंट को आपका सी स्पाइन का स्टेबलाइज कर सकता है। और ऐसे भी आपके पास लोग कम है, आपके पास एक ही लोग है जिसको कुछ ना कुछ रेसिस्टेशन आता है, तो आपको सी स्पाइन टाइम बिंग इमोबिलाइज करने के लिए आप कोई पत्थर या किसी तरह का ऐसा वाला हार्ड चीज भी रख सकता है जिस जिस वजह से पेशेंट का सर नहीं हिला पाओगे, पेशेंट को सर नहीं हिला पाओगे, तो वो भी एक ऑल्टरनेट तरीका है। तो एयरवे पहले हमने एक्सैंग्युनेटिंग हेमरेज या ब्लीडिंग के बारे में बताया, अभी हम एयरवे के बारे में बताया, जैसे आप जोत्रस से या कोई सिक्रेशन है उससे हम निकालने के लिए बात किया हमने, और उसके साथ साथ सी स्पाइन स्टेबलाइजेशन की भी बात किया। तो ब्रीथिंग ऐसा होता है, एयरवे जैसे मैंने बोला एयरवे पाथवे है हमारा, बाहर से फेफड़े तक जो रास्ता है हमारा सांस लेने का जो रास्ता है वही होता है एयरवे। ब्रीथिंग वही होता है जो लंग्स में या फेफड़े में जैसा हमारा गैस एक्सचेंज वगैरह होता है वो ब्रीथिंग होता है। तो ब्रीथिंग भी हमें लुक लिसन फील से पता हो सकता है कि कोई दिक्कत है, पेशेंट को दिक्कत है तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको बारे में हमें देख सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज आप आप देख लो कि पेशेंट कैसे सांस ले रहे, पेशेंट सांस लेने में कोई दिक्कत है, कम सांस ले रहे या बहुत ज्यादा सांस ले रहे, सांस लेने में पेशेंट का मसल्स वगैरह बहुत प्रोमिनेंट होता है तो उसका मतलब है कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत है। और कभी कभी पेशेंट भी बताया गया कि उसको सांस लेने में दिक्कत है, तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं वो हम एक बार देखेंगे। तो लंग्स में आपको कुछ करना है तो थोड़ा सा आपको स्किल चाहिए होगा, उसको आपका कुछ भी इंटरवेंशन करना है तो आपको थोड़ा सा स्किल चाहिए होगा। एक चीज है, आपके पास आप कोई एम्बुलेंस में आ रहे हैं या आपके पास कोई भी इक्विपमेंट्स है तो आप ऑक्सीजन लगा सकते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप ऑक्सीजन लगा सकते हैं। दूसरा चीज है आपको देखना चाहिए, एक चीज है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। तो नॉर्मली कैसा होता है, ये वीडियो में साउंड नहीं है बट उसका मैं बताता हूँ, क्या कमेंट्री देता हूँ। नॉर्मली आपका लंग्स में आप नॉर्मली सांस लेता है, बट किसी ना किसी वजह से लंग्स में आपको कुछ ना कुछ चोट लगता है, जैसे रिप फ्रैक्चर्स की वजह से या किसी चीज की वजह से आपको चोट लगता है, तो उसकी वजह से लंग्स का अंदर का पूरा एयर बाहर निकलता है। तो लंग्स के और लंग्स के कवरिंग के बीच में एयर जम जाता है और ऐसे जमना शुरू होता है। और एक
पॉइंट पे वो ऐसा होता है कि इतना जमता है तो कि वो लंग्स हार्ट को भी प्रेशर देता है और ठीक तरह से सांस नहीं ले पाओगे। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स। ये आपको कैसे पता चलेगा? पेशेंट बोलेगा कि आपको उसको सांस लेने में दिक्कत है, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको स्टेथोस्कोप चाहिए होगा। आपके पास है, प्री हॉस्पिटल में आप कर पाओगे तो अच्छी बात है। आप ऑस्कल्टेट करके, लंग्स में ऑस्कल्टेट करके देखोगे तो एक जगह एयर एंट्री कम होगा, दूसरे जगह ठीक तरह से एयर एंट्री होगा। तो एयर एंट्री कम होगा क्योंकि इस तरफ एयर आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा लंग्स कोलैप्स है ये एयर की वजह से। तो क्या कर पाओगे आप? उसको नीडल डाल के ये डिकम्प्रेस कर पाओगे। तो आपका फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, आपका फिफ्थ मैमरी लाइन से नीचे फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में एंटीरियर और मिड एक्सिलरी लाइन के बीच में आप एक नीडल डालोगे तो वो करीबन यही आ जाएगा। तो इस जगह पे आ जाएगा और ये जो एयर है वो निकल जाएगी और पेशेंट नॉर्मल ठीक तरह से सांस ले पाओगे। तो दैट इज हाउ यू मैनेज अ टेंशन न्यूमोथोरैक्स। बट वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको प्री हॉस्पिटल में कोई ना कोई चीज चाहिए होगा, जैसे आपको स्टेथोस्कोप चाहिए होगा कि उसी से ही आपको पता चलेगा। तो दूसरा चीज है ओपन न्यूमोथोरैक्स। ओपन न्यूमोथोरैक्स में पेशेंट का कोई भी ऐसा ओपन वुंड है, जैसा कोई नाइफ से या किसी ने चाकू मारा है या गन शॉट इंजुरी है, तो इसकी वजह से पेशेंट को एक ओपन इंजुरी है। तो जैसे हमने अभी बोला, ऐसा ही पेशेंट का बाहर से एयर अंदर आ जाएगी, लंग्स कोलैप्स हो जाएगा, पेशेंट ठीक तरह से सांस नहीं ले पाओगे। इसमें आपको प्री हॉस्पिटल में एक अच्छा सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वो है 3-वे सील, 3-वे ड्रेसिंग। जैसे ये वीडियो में दिखा रहे, तो एक एक आप कोई भी एक पैड या कोई भी एक चीज ले लो, एक पेपर भी लगा सकते हैं और उसको 3 तरफ सील कर लो, 3 तरफ सील कर लो। तो उसका आइडिया ये है कि पेशेंट जब सांस लेते हैं तो इस तरह का फ्लैप है वो बंद हो जाता है, तो बाहर से एयर अंदर नहीं आ जाएगा। तो हमारा इश्यू है कि पेशेंट जब सांस लेते हैं बाहर से एयर अंदर आता है, क्योंकि यहाँ एक इंजुरी है, एक वुंड है, और बाहर से एयर अंदर आ जाता है। सांस में यहाँ से एयर अंदर नहीं आओगा और यहाँ एयर जम जाएंगे और सांस ठीक तरह से नहीं ले पाओगे। तो यहाँ आप एक कवरिंग डालोगे तो ऐसा हो जाएगा कि जब पेशेंट सांस लेता है तो एयर अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि पेशेंट जब सांस लेता है ये फ्लैप खींच जाएगी, अंदर खींच जाएगी और यहाँ से एयर नहीं आएगा और पेशेंट एक्सपायर करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं तो इसी तरह से एयर बाहर भी जाएगा। तो एक ओपन वुंड है, चेस्ट में एक ओपन वुंड है, और जैसे ये वीडियो में दिखा रहे वो वुंड से ऐसा पानी ऐसा खून आ रहा है और ओपन सकिंग वुंड बोलता है उसमें, ऐसा वाला एक वुंड है। तो आपको एक 3-वे ड्रेसिंग लगाते हैं तो प्री हॉस्पिटल में पेशेंट को सांस ठीक होने में वो मदद करेगी। ठीक है, तो हमने एयरवे के बारे में बताया, एक्सैंगुलेटिंग हेमोरेज के बारे में बताया, एयरवे के बारे में बताया, सी स्पाइन के बारे में बताया, और हम ब्रीथिंग के बारे में, ओपन न्यूमोथोरैक्स और टेंशन न्यूमोथोरैक्स के बारे में बताया। नेक्स्ट है सर्कुलेशन विद हेमोरेज कंट्रोल। तो जैसे मैंने बोला, पेशेंट का अक्यूट ब्लीड है, बहुत सारे एक्सैंगुलेटिंग हेमोरेज है, कोई आर्टरी से बड़ा वाला नस से ब्लीडिंग जा रहा है, तो उसको पहले आपको कंट्रोल करना है। बट छोटा मोटा ब्लीड जो है बाहर से है तो बाद में भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उससे कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजुरीज नहीं होगा। तो उसके लिए आप वेट कर सकते हो, उसके ट्रीटमेंट के लिए आप वेट कर सकते हो। जैसे आप अक्यूट ब्लीड मैनेज किया, एयरवे मैनेज किया, ब्रीथिंग मैनेज किया, उसके बाद आपको बाकी सर्कुलेशन या ब्लीडिंग आप कंट्रोल कर सकते हैं। बट ऐसा भी होता है कि सभी ब्लीडिंग आपको बाहर में नहीं दिखेगा। पेशेंट का कोई बड़ा बोन का इंजुरी है, जैसा फीमर का इंजुरी है, लेग में कोई इंजुरी है या हिप में कोई इंजुरी है, तो उसका भी ब्लीडिंग होगा, वो अंदर होगा, बाहर नहीं दिखेगा। तो आपको लगता है कि पेशेंट का इस लिम्ब में, इस हड्डी में कोई टूट है, तो उस टूट से करीब 1-1.5 लीटर ब्लड इसमें ताई में जमा होने का चांसेस है। और यहाँ पेट में कोई जैसे 1.5 to 2 लीटर्स ब्लड उसमें जम जाने का चांसेस है। पेल्विस में, हिप में कोई फ्रैक्चर है तो उसकी वजह से भी 1 से 1.5 लीटर ब्लड जम जाने का चांसेस है। चेस्ट में भी कोई इंजरीज है, तो सभी इंटरनल इंजरीज, ये सब हमें बाहर पता नहीं होगा, सभी इंटरनली जम हो जाता है। तो ऐसे वाले इंजरीज में आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए और सोचना चाहिए कि इसका ब्लीडिंग होने का चांसेस है। तो उसमें आपको प्री हॉस्पिटल में ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे,
बट एक्चुअली एक्सटर्नल ब्लीडिंग है तो जैसे हमने बोला उसको आप प्रेशर डाल सकते हैं, नहीं तो कोई भी क्लोथ वगैरह उसके अंदर डाल के पैक कर सकते हैं और ब्लीडिंग रोक कर सकते हैं। और जैसे हमने बोला टॉर्निके अप्लाई करता है तो उसको टाइम भी लगाना है, तभी हमें पता चलेगा कि 30 मिनट्स हो गया है या नहीं हो गया है। और इसे बोलता है पेल्विक बाइंडर। जैसे आपको लगता है यहाँ पेल यहाँ हिप में कोई इंजुरी है, वहां आपको कोई हिप में इंजुरी लग रहा है और पेशेंट बोल रहा है कि उसको हिप में कोई इंजरी हुआ है, पेशेंट गिर गया है ऊपर से, तो उसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और आपको ऐसे एक बेडशीट या किसी न चीज लगा के पेशेंट टाइट से बांध कर सकते हैं, ताकि यहाँ का ब्लीडिंग आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। तो पेल्विस में अंदर में ब्लीडिंग होता है, तो बाहर से हम प्रेशर से टाइट से बांध के रखिएगा, तो वहां से ज्यादा ब्लीडिंग थोड़ा सा हमें कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्री हॉस्पिटल में ये 3 चीज आपको कर सकते हैं, जैसे आप कोई पैकिंग लगाएंगे या कोई प्रेशर ड्रेसिंग लगाएंगे या आपको पेल्विक बेल्ट भी लगा सकते हैं। और जैसे हमने बोला ऐसा हेमरेज है तो उसको आप प्रेशर बैंडेज करके ऐसे हाथ ऊपर कर लटकाएंगे, तो ब्लड सप्लाई यहाँ का ब्लड जैसा इस तरफ आ रहा है वो कम हो जाएगा और ब्लीडिंग हमें रोक कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ 1 या 2 मिनट नहीं रखना है, एटलीस्ट 5 मिनट्स आपको होल्ड करना है, और उसके बाद ही आपको देखना है कि उसके ऊपर भी ब्लीडिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जैसे मैंने बोला आपको ब्लीडिंग है या नहीं है वो बाहर दिख सकता है, बट ऐसा ऐसा ब्लीडिंग भी होता है जो बॉडी के अंदर का होता है, जो आप दिख नहीं पाओगे। जैसे पेशेंट में चेस्ट में कोई इंजरी है या एब्डोमेन में कोई इंजरी है या कोई बड़ा हड्डी जैसा हाथ का हड्डी या लोअर लिम्स का पैर का ये बड़ा वाला हड्डी में टूट है, तो आपको 1 या 1.5 लीटर ब्लड उसके अंदर ही जम जाने का चांसेस है। वो देख के आपको समझ में आना चाहिए कि ये थोड़ा सीरियस होने का चांसेस है, और तो तुरंत उसको वैक्यूएट या हॉस्पिटल में आपको लेके जाना होगा। तो इसका हड्डी टूट है तो उसका स्प्लिंटिंग कैसा करेंगे उसके बाद बारे में भी हम बात करेंगे। और ABC हमने बोला, एयरवे विद सी स्पाइन, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन और डिसेबिलिटी और एक्सपोजर। डिसेबिलिटी उसको बोलते हैं कि पेशेंट का होश होश कैसा है, पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं, तो पेशेंट अलर्ट है, या आप कुछ बोल रहे हैं तभी पेशेंट रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, नहीं तो आप बहुत पेन दे रहे हैं तभी पेशेंट रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो नहीं तो पेशेंट पूरा अनरेस्पॉन्सिव है। तो इसी वजह से आपको पता चलेगा, क्योंकि पेशेंट पूरा अलर्ट है तो उसकी उसकी यही मतलब है कि पेशेंट का सर्कुलेशन ठीक है, ब्रेन में ठीक तरह से ब्लड जा रहा है और पेशेंट का ब्रेन भी ठीक है। अनरेस्पॉन्सिव है तो उसका मतलब है कि पेशेंट का ब्रेन ठीक नहीं होगा, नहीं तो सर्कुलेशन में कोई दिक्कत होने का चांसेस है। तो उसमें तो आपको प्री हॉस्पिटल में ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, सब असेस कर सकते हैं कि पेशेंट का ऐसा कोई दिक्कत है या नहीं। और अगला चीज है एक्सपोजर। तो एक्सपोजर में आपको देखना है कि और कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो। जैसे इसमें है चाकू लगा के रखा है, तो आपको प्री हॉस्पिटल में ये निकालना नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि चाकू का टिप है वो जाके कोई ना कोई ब्लड वेसल में अटका के रखते होगे। जब आप निकालते हैं तो वो नस कटा है वो पूरा कट जाएगा और पेशेंट का और भी ब्लीडिंग होने का चांस है। तो जो चाकू लगा है वो वही रखना चाहिए और उसी को पैक करके आपको ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। और आपको देखना चाहिए कि पेशेंट ऐसा एक्सपोज ना हो, पेशेंट का कपड़ा सभी निकल गया तो किसी न किसी कपड़े से पेशेंट को कवर भी करना है, क्योंकि पेशेंट का बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है तो पेशेंट और भी दिक्कत होने का चांसेस है, ट्रॉमा है, ब्लीडिंग है तो और भी दिक्कत होने का चांसेस है। सो हमने बोला कि एक सीन सेफ्टी के बारे में पहले बोला, उसके बारे में प्राइमरी सर्वे या प्राइमरी इंटरवेंशन क्या क्या आप करोगे, जैसे एक्सैंगुनेटिंग हेमरेज है तो या ब्लीडिंग है तो आप क्या करोगे, एयरवे में आप क्या करोगे, लाइक जॉ में आप कैसे करोगे, सी स्पाइन सर्विकल स्पाइन का ट्रीटमेंट के कंट्रोल आप कैसे करोगे, स्टेबलाइज आप कैसे करोगे, और ब्रीथिंग में क्या क्या देखना है उसके बारे में थोड़ा सा हमने बता दिया, सर्कुलेशन में क्या करना है, डिसेबिलिटी और एक्सपोजर क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा बात किया। और ऐसा वाले पेशेंट को आप कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे, आपको पेशेंट को कहीं लेके जाना है, आपके पास एम्बुलेंस है या कोई गाड़ी है, आप कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे, तो वो ट्रांसपोर्ट करने का तरीकों को हम बोल रहा है लॉग रो। तो आपके पास एक पेशेंट है तो आपको 2 या 3 लोगों का जरूरत ही होगा। तो एक तो सी स्पाइन स्टेबलाइज कर लोगे और दो लोग एक ही जगह में होगा।
So the so two people will stand on one side, or they will hold the patient on one side. तो the idea of this is हम एक साथ पेशेंट को उस साइड में टर्न कर रहे हैं. तो जैसे हम इसमें, तो ऐसे एक साथ हम पेशेंट को टर्न कर रहे हैं. सो इट इज कॉल्ड लॉग रोल. इट इज हाउ यू रोल अ पीस ऑफ लॉग और पीस ऑफ वुड. लकड़ी को आप कैसे रोल करोगे, उसी को हम बोलता है. तो जैसे उसी हमें रोल करना है ताकि हमारा नेक का और पूरा स्पाइन और पूरे पीछे का स्पाइन का कोई इंजुरी ना हो. एक जन ऐसे हम, जैसे हम कोई भी इंजुरी होता है, हम देखता है कि सभी एक लोग एक एक वन पर्सन विल टेक एक वन पेशेंट एंड विल बी रनिंग टू अ पर्टिकुलर एरिया. तो वो करते हैं कि पेशेंट का भले के लिए करते हैं, बट ऐसा हो सकता है कि पेशेंट का नेक ऐसा, नेक वोंट बी स्टेबलाइज, नेक ऐसे ही हैंगिंग जैसे हम दिखता है. तो ऐसे करने से कोई भी स्पाइन का कोई इंजरी होता है, उसका ज्यादा होने का चांसेस है. तो वो अवॉइड करने के लिए हम लॉग रोल करते हैं. तो पेशेंट एक पर्सन तो बाईस्टैंडर के हेल्प से आपको कर सकते हैं. आपको एक पर्सन हेड का स्टेबलाइज कर सकते हैं, और टू पीपल विल स्टैंड ऑन वन साइड. और जैसे आप देखोगे उसका हाथ क्रॉस करके रखा है. वन पर्सन इज होल्डिंग हियर, अनदर पर्सन इज होल्डिंग हियर. आई मीन नेक्स्ट हैंड इज हियर, नेक्स्ट पर्सन इज होल्डिंग हियर एंड दिस. तो ट्विस्ट ना हो, इसी वजह से ऐसे किया है. और उसके बाद आप, ये तो स्पाइन बोर्ड है. आपके पास स्पाइन बोर्ड है तो स्ट्रक्चर भी लगा सकते हैं, नहीं तो कोई भी लकड़ी या कोई दरवाजा ऐसा वाला कोई फर्म चीज पे पेशेंट को ये लगा के पेशेंट को फाइनली पेशेंट को ऐसे लिफ्ट कर सकते हैं. तो उसकी ऐसे करने से हम ये इंश्योर करता है कि पेशेंट का स्पाइन का कोई इंजुरी ना हो, पेशेंट का नेक का और पूरा बॉडी का स्पाइन का इंजुरी ना हो. तो ऐसे पेशेंट को लगा के आप ये ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. तो इफ आपके पास ये लकड़ी वगैरह नहीं है, तो ये जैसे मैंने बोला, ये ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. इसकी इसकी जगह पे आपको दो या तीन लोगों को यहाँ लगा के उसका हाथ भी ये लगा के पेशेंट को उसमें लिटा कर सकते हैं. दे कैन जस्ट कीप देयर फोर आर्म्स हियर. 2 or 3 people can keep their forearms here and transport this patient to that forearm, and then patient can be transported to the structure, into the ambulance or into the vehicle. सो हेलमेट भी रिमूवल, जैसे पेशेंट को कोई ट्रॉमा वगैरह होता है तो हेलमेट रिमूवल भी इम्पोर्टेंट है. क्योंकि हेलमेट, ऐसे हेलमेट है तो आप ऐसे ही रिमूव करोगे, तब भी आपका सर्विकल स्पाइन का इंजरी होने का चांसेस है. तो एक वन पर्सन विल होल्ड द नेक फ्रॉम द फुट एंड अनदर पर्सन विल इंसर्ट देयर हैंड. हेलमेट को ऐसे एक्सपैंड स्ट्रेच करोगे और धीरे धीरे हेलमेट को आगे पीछे करके उसको निकालना है. और यदि पेशेंट कोई गाड़ी में इंजरी होके ऐसा रहता है, तब भी उसको आपको एक्सट्रिकेट करना है, गाड़ी से निकालना है, तो भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट का सी स्पाइन का कोई इंजरी ना हो. तो उसमें भी अब हेल्प कर सकता है कि पीछे से जाके आपको नेक का स्टेबलाइज करके, पेशेंट को थोड़ा थोड़ा नेक को स्टेबलाइज करके थोड़ा थोड़ा साइड में पोजीशन करके आपको किसी ना किसी तरह का कोई स्टेबल या स्ट्रक्चर में पेशेंट को लिटा कर सकता है और ट्रांसपोर्ट कर सकता है. तो आपके करंट सिनेरियो या आपका वहां का ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से आपको ये सब कैसे एडजस्ट करना है, अरेंज करना है, वो देखना होगा. क्योंकि सभी जगह कॉलर नहीं होगा, सभी जगह ये स्पाइन बोर्ड नहीं होगा. तो आपको वहां जो अवेलेबल है उससे आपको क्या कर सकते हैं वो आपको देखना चाहिए. तो जैसे हमने बोला, स्प्लिंटिंग भी करना है, क्योंकि आपको कोई भी हड्डी टूटा है, ऐसा हड्डी बाहर निकल के रखा है, तो आप ऐसे ही पेशेंट को लेके जाओगे तो ये हड्डी जो टूटा है और भी टूट होने का चांसेस है, और भी दिक्कत होने का चांसेस है. तो हड्डी टूटा है तो उसको स्टेबल करने के लिए वी विल डू द स्प्लिंटिंग. और स्प्लिंटिंग के लिए आपको ज्यादा चीज नहीं चाहिए. आपका कोई लकड़ी का पीस या बेडशीट से भी कर सकते हैं, या कार्डबोर्ड से भी आप कर सकते हैं. हमारा यही आइडिया है कि एक जॉइंट नीचे और एक जॉइंट ऊपर का स्टेबलाइज करना है. ये जॉइंट और ये जॉइंट स्टेबलाइज करना है यदि यहाँ हड्डी टूटा है, ताकि ज्यादा मूवमेंट ना हो. और दूसरा चीज है कि आपको आगे का ये हाथ का पूरा न्यूरोवास्कुलर स्टेटस बीच बीच में भी देखना चाहिए कि कोई काला ना हो,
उसका स्टेटस ठीक है या नहीं है, वो भी बीच बीच में देखना होगा। मेजर थिंग इज यू कैन जस्ट स्टेबलाइज दी जॉइंट बिलो एंड जॉइंट अबव। और आपका कोई भी हड्डी ऐसा बाहर निकल के रखा है तो उसको कुछ भी नहीं करना, एक थोड़ा सा कोई कपड़ा कुछ लगा के वही उसके ऊपर रखे पैक करके रखना, उसका कोई हैंडल नहीं करना। और ऐसा भी हो सकता है कोई एम्प्यूटेटेड पार्ट्स हो, कोई एक पार्ट एम्प्यूट करके होता है, तो कोई इन सम सिचुएशन दिस कैन बी एक्चुअली sutured बैक, दोबारा सूचर करके रख सकता है, बट डिपेंड्स ऑन दी कंडीशन ऑफ दिस पार्ट। वो ज्यादा क्रश है तो कर नहीं पाओगे, बट नहीं है तो दिस कैन बी सूचर बैक। तो आपको यही करना है कि उसको एक प्लास्टिक कवर में डाल के पूरा पैक करके, और वो प्लास्टिक कवर एक आइस में डाल के लाना लेके जाना होगा। डायरेक्टली ये जो पार्ट है वो आइस में नहीं डालना है, उसको पैक करके प्लास्टिक कवर में डाल के और वो प्लास्टिक कवर आइस में डाल के लेके जाना है। एंड बर्न्स, तो बर्न्स में भी कुछ होता है, तो आपको यू शुड मेक श्योर कि हमारा प्रोटोकॉल या आइडिया इज द सेम। सीन सेफ्टी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको बर्न नहीं लगना चाहिए, और पेशेंट का बेसिक एबीसीडी मैनेजमेंट भी है। और कोई भी कपड़ा उसमें चिपका के रखा है या कोई भी इंजरी कोई भी छिप के रखता है, तो यू डोंट ट्राई टू रिमूव दैट थिंग्स, लेट इट बी देयर। और आपको फ्लूइड वगैरह दे सकते हैं तो वो भी स्टार्ट करना है। तो बर्न का इंजरी डिपेंड्स ऑन हाउ डीप द बर्न है, कितना डेप्थ है। ये तो सुपरफिशियल बर्न है, बट ये सब डीप बर्न्स है, तो कितना बर्न्स हुआ है उसकी वजह से हमारा ट्रीटमेंट में डिसीजन होगा। और कहाँ कहाँ बर्न लगा है, बच्चों में डिफरेंट है, अडल्ट में डिफरेंट है, तो कितने जगह में बर्न हुआ है वो उसके हिसाब से हो जाएगा आपका ट्रीटमेंट डिसीजन। तो छोटा सा बर्न है तो आपको पानी में सलाइन सॉफ्ट ड्रेसिंग लगा सकते हैं, बट बड़ा बर्न्स है तो उसमें पानी नहीं लगाना है या आइस नहीं लगाना है, क्योंकि उसकी वजह से बड़ा बर्न्स है तो पेशेंट का ऑलरेडी स्किन कवरिंग है वो निकल चुका है। आप आइस भी डालोगे का बॉडी पेशेंट हाइपोथर्मिक होने का चांसेस है, और भी दिक्कत होने का चांसेस है। तो आप बर्न्स है तो कोई वहां चिपका के रखा है तो उसको निकालना नहीं है, वहीं रखने देना है, और आपको खाली एक ड्रेसिंग लगाना है और पेशेंट को अस्पताल लेके जाना है। तो उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि पेशेंट का मुंह में ऐसा काला हो गया है, पेशेंट सांस लेने का दिक्कत बोल रहा है, तो उसका मतलब है कि पेशेंट का लंग्स में भी या एयरवे में भी इंजरी होने का चांसेस है, और पेशेंट सांस रुकने का चांसेस बहुत ज्यादा है, तो उसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बट आपको ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली हॉस्पिटल जाके ही दे पाओगे, क्योंकि प्री हॉस्पिटल में आपका एयरवे वगैरह मेंटेन ऑक्सीजन वगैरह दे सकते हैं तो अच्छी बात है, बट इफ नॉट यू विल हैव टू टेक द पेशेंट टू अ हॉस्पिटल। और कोई भी मेजर बर्न्स है, जैसा आपका मोर देन 20% बर्न्स है, या फीट फेस पेरिनियम इन्वॉल्विंग बर्न्स है, इलेक्ट्रिकल बर्न्स वगैरह है, तो आपको डेफिनेटली मेजर बर्न केयर सेंटर में ही लेके जाना पड़ेगा। और जैसे हम बोल रहे हैं ब्लास्ट इंजरी भी साथ साथ हो सकता है, तो कोई एक्सप्लोशन है तो उसमें आपका ये जो बर्न्स के अलावा कोई भी श्रापनल्स है, जैसा कोई ब्लास्ट के कोई कोई चीज है, उससे भी इंजरी हो सकता है। पेशेंट ब्लास्ट की वजह से पेशेंट थ्रोन ऑफ हो गया है तो उसकी वजह से भी इंजरी हो सकता है। और ब्लास्ट वेव बोलता है जो पहले ब्लास्ट में आता है, एक अल्ट्रासोनिक वेव आता है ब्लास्ट में, उसकी वजह से आपका एयर कंटेनिंग ऑर्गन्स में, जैसा लंग्स में, इंटेस्टाइन में, टिम्पैनिक ईयर में, उसी में भी इंजरी होने का चांसेस है। तो समरी में हम बेसिकली एक्स एबीसीडी के बारे में बात किया, हम एक्सैंगुलेटिंग हेमरेज के बारे में बात किया, एयरवे मैनेजमेंट के लिए बारे में बात किया, ब्रीथिंग सर्कुलेशन डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर के बारे में बात किया। तो थोड़ा सा मैं बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में भी डिस्कस कर लूंगा, जिसमें आपको कार्डियक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी अरेस्ट है। तो आप देखते भी होंगे और बहुत सुना भी होगा, पेशेंट सडनली बिकमिंग अनरेस्पॉन्सिव, जिम में वर्कआउट करने के टाइम में अनरेस्पॉन्सिव हो गया, या पेशेंट इलेक्शन के टाइम में लाइन लगाने के टाइम में अनरेस्पॉन्सिव हो गया। सो वो सब हो सकता है कार्डियक अरेस्ट या रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। तो कार्डियक अरेस्ट को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जस्ट सी इफ द पेशेंट इज अनरेस्पॉन्सिव और नॉट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका सीन सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। आप तैरना नहीं आता है तो आप पानी में कूदना नहीं है, पेशेंट को एक सेफ जगह में लेके जाना है। और उसके बाद आपको देखना है कि पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है या नहीं। पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है तो आप चेक फॉर रिस्पॉन्स और ब्रीथिंग देखना है। आप पेशेंट को टैप करके कॉल कर लो, पूछ लो वो ठीक है या नहीं है। नहीं तो पेशेंट का ब्रीथिंग भी आप स्कैन कर लो, उसके साथ साथ ब्रीथिंग भी स्कैन कर लो।
पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, ठीक तरह से ब्रीथ नहीं करता है, तो या पूरा ब्रीथ नहीं करता है, तो उसका मतलब है पेशेंट को कोई ना कोई दिक्कत है। तो आपको हेल्प के लिए कॉल करना पड़ेगा, यू विल हैव टू कॉल फॉर हेल्प। तो आप आपका बाई स्टैंडर्स है, आप कोई साथ है, उसको बता सकते हैं कि एम्बुलेंस को बुलाओ, नहीं तो आपको 108 एम्बुलेंस बुलाने के लिए किसी को बता सकते हैं। तो यू शुड टेक हेल्प फ्रॉम अदर पीपल सो दैट आप रेसिस्टेशन कर पाओगे। और आप उसके साथ साथ पल्स भी चेक करोगे, तो पल्स नेक में चेक करना है, कैरोटिड पल्स नेक में चेक करना है। और आपके दो इंग्लिश से आपका ये जो मिड लाइन में जो प्रोमिनेंस मिलता है, थायराइड कार्टिलेज या एडम्स एपल जो बोलता है प्रोमिनेंस मिलता है, उसके लैटरली उसके साइड में आपको पल्स, दो फिंगर से आपको पल्स चेक करना है। तो पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है, पल्स नहीं है, ब्रीथिंग नहीं है, तो आपको सीपीआर स्टार्ट करना है। और सीपीआर में आपका पोजीशन, हैंड का पोजीशन ऐसे होगा, और लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम में आपका हैंड पोजीशन होगा। और आप 30 कंप्रेशन देना है। 30 कंप्रेशन के बाद आपको 2 ब्रेथ्स भी देना है। तो हो सकता है आपको, आपके पास ऐसा बैक मास्क वेंटिलेशन ना हो, या ऐसा पॉकेट मास्क वगैरह ना हो, आपको माउथ टू माउथ देना है, और आप नहीं लगता है आपको माउथ टू माउथ देने के लिए आपको दिक्कत है। If you are not comfortable giving mouth to mouth respiration, you can just give CPR. Hands only CPR से भी पेशेंट बचता है। तो पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है, नॉट ब्रीथिंग है, नॉट हैविंग अ पल्स, आपको पल्स नहीं मिल रहा है, तो आपको खाली सीपीआर भी कर सकते हैं। यू कैन जस्ट डू सीपीआर एंड नॉट गिव अ माउथ टू माउथ ब्रेथ इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट। तो उसके साथ साथ हमें ऐसा भी कंडीशन मिल सकता है जिसमें पेशेंट का पल्स हो। तो पेशेंट एक दौरा पड़ के गिर गया, तो पेशेंट हैड अ सीजर एंड फेल डाउन, पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है, ठीक तरह से ब्रीथ नहीं करता है, बट पेशेंट को पल्स है, तो उसका मतलब है पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में नहीं है, मगर रेस्पिरेटरी अरेस्ट में। तो उसमें आपको ये कर सकते हैं कि पेशेंट को रिकवरी पोजीशन में, लेफ्ट लैटरल पोजीशन में पेशेंट को लिटा कर सकते हैं, और आपको ब्रेथ देने का कोई ऑप्शंस है, ब्रेथ देने का आपका कोई ऑप्शन है, कोई बैग एंड मास्क वेंटिलेशन या ऑक्सीजन देने का कोई ऑप्शन है, तो वो आपको दे सकता है। नेक्स्ट थोड़ा सा हम स्नेक बाइट के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि स्नेक बाइट भी आपको प्री हॉस्पिटल कम्युनिटी में बहुत सारे मिलते होंगे। तो हमारा तो इंडिया में हम बिग 4 बोलते हैं, जो बिग 4 से हमें कोई वेनमस स्नेक्स बोलते हैं। बट ऐसा होता है कि 80 to 90% ऑफ स्नेक बाइट्स आर नॉन वेनमस, उसमें वेनम नहीं होता है, बट कोई भी बोलता है सांप काटा है, तो हमें लेना चाहिए कि सांप काटा ही है और वो वेनमस होने का चांसेस है। तो आपको, यू शुडंट बी मेकिंग अ इंजरी देयर, आप कोई ब्लड से ब्लेड से उसको काटना नहीं चाहिए, वहां से ब्लड सक करके, ब्लड चूस के लेना नहीं चाहिए, उसको करना है डू इट राइट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पेशेंट को रीएश्योरेंस देना है, बोलना है कि उसको आप घबराइए मत, आपका उसका लिम को इमोबिलाइज करना है। लिम को जैसे हमने स्प्लिंटिंग के वहां दिखाया, ऐसा ही लिम को इमोबिलाइज करके, लिम को ऐसे ही पोजीशन में लेके, उसको ज्यादा दौड़ने का, यू शुड मेक हिम वॉक और रन, उसको वही मोबिलाइज करके रखना है, उसको हॉस्पिटल को लेके जाना है और डॉक्टर को बताना है। क्योंकि सांप काटा है और वो वेनमस स्नेक है, तो उसका ट्रीटमेंट एंटी स्नेक वेनम ही है, उसके अलावा किसी से वो बच नहीं पाओगे। तो आपको अस्पताल लेके आपको देखना पड़ेगा और इवेल्युएट करना पड़ेगा कि पेशेंट कैसा है, तो आपको अस्पताल लेके दिखाना पड़ेगा। एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, एनाफिलैक्सिस है। जैसे एनाफिलैक्सिस आपको मिल सकता है, जैसे किसी न किसी क्या स्टिंग से, लाइक हडी बी स्टिंग्स या वैस्प स्टिंग, ऐसे कुछ से आपको किसी ने कोई प्री हॉस्पिटल में इश्यू होता है, तो उसको हम बोलता है एनाफिलैक्सिस, जिसमें पेशेंट का पूरा स्वलन हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होने का चांसेस है, पेशेंट का बीपी ड्रॉप हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन भी बहुत सीरियस कंडीशन है, क्योंकि इसमें बचने का एक ही चांस एड्रेनालिन, ये दवा लेने से ही पेशेंट बच पाओगे। और उसको हम आईएम देना है पेशेंट का थाई में। तो उसको पेशेंट ऐसा कोई सिम्टम्स दिख रहा है, कोई मधुमक्खी या कोई बीस कुछ भी काटा है, या कोई दवा लेने से पेशेंट को ऐसा गुजली आता है, इचिंग आता है, और पेशेंट पूरा स्वेलिंग आ जाता है, तो वो एनाफिलैक्सिस होने का चांसेस है, और उसका ट्रीटमेंट आपको हॉस्पिटल लेके एड्रेनालिन देने से ही हो पाएगा। तो वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अब तक हम क्लिनिकल के बारे में बताया है, थोड़ा सा हम ट्रायज के बारे में भी बताएंगे। आई होप
ट्रैश के बारे में भी हम 5 मिनट बात कर लेंगे। तो ट्रैश है कि आपको, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैश? ट्रैश इज टू सॉर्ट द पेशेंट, प्रायोरिटाइज द पेशेंट। तो आप प्री हॉस्पिटल एक सिनेरियो में चलता है, एक कोई ब्लास्ट हुआ है, देयर आर 20 पेशेंट्स, आपके पास एक ही एम्बुलेंस है या एक ही एम्बुलेंस आप पाओगे, तो आप कैसे बोलेगा कि किस पेशेंट को फर्स्ट लेके जाना है, किसको आप सेव कर पाओगे? तो वो सॉर्टिंग आप जो कर रहे हैं उसे हम ट्रैश बोलते हैं। तो आउट ऑफ हॉस्पिटल है तो हमें देखना चाहिए, हमारा कंसिडरेशन ये होगा कि किसको पहले शिफ्ट करना है, किसको किसको पहले रिसस्टेट करना है। हॉस्पिटल में भी हम ट्रैश करते हैं क्योंकि हमारे इमरजेंसी में एक दिन में 200 300 पेशेंट्स आते हैं, तो उसको भी हमें देख के अंदर लेना चाहिए। किसको इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए उसको पहले इमीडिएट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, नहीं तो पेशेंट डेथ हो जाएगा। तो वो सॉर्टिंग को हम बोलते हैं ट्रैश। और बहुत सारे ट्रैश होता है, जैसे आप हॉस्पिटल में पेशेंट करता है वो इंडिविजुअल पेशेंट के लिए करता है, बट किसी भी मास इंसिडेंट हुआ, जैसे मैंने बोला एक्सप्लोशन हुआ, तो हमारा आइडिया ये होगा कि जो इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग कोई इंजरी है और उसको हम बचा पाओगे, तो उसको पहले पिक करके इनिशियल रिसस्टेट करके ट्रांसपोर्ट करना होगा। तो वही आइडिया होगा हमारे कोई मास कैजुअलिटी इंसिडेंट का ट्रैश में। तो देर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्रैश आर देयर, लाइक फील्ड में जैसे मैंने बोला 20 पेशेंट को लगा हुआ है, तो आपको देखना है कि कौन सा पेशेंट ज्यादा दिक्कत है। तो वन मेथड इज सॉर्टिंग, ग्लोबल सॉर्टिंग इज जो पेशेंट वॉक कर सकता है, जो चल रहा है, उसका मतलब है उसका कम दिक्कत होगा, तो दे कैन बी ट्रीटेड लेटर। और जिसको हम कुछ बोल रहे हैं, हम माइक्रोफोन से बोल रहे हैं कि जो जो हाथ ऊपर कर सकते हो, हाथ ऊपर कर सकते हो वो हाथ ऊपर करिए। इफ यू टेल देम एंड इफ दे आर एबल टू डू दैट, देन दैट मीन्स दे माइट नॉट बी एबल टू वॉक, उसको चलने नहीं पाओगे, बट स्टिल पेशेंट का कॉन्शियस है, पेशेंट का ब्रेन और परफ्यूशन अभी के लिए ठीक है, तो उसको भी हम लेट में ट्रीट कर सकते हैं। बट जो पेशेंट्स किसी भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, पेशेंट ऐसा स्टिल करके रहते हैं, तो उसको हम पहले असेस करना है क्योंकि उसका लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज होने का चांसेस है। और उसको हम पहले असेस करने से हम क्या असेस करोगे, जैसे हमने बोला XABCD देखोगे, उसका कोई एक्सैंग्नेटिक हेमरेज है तो हम वो स्टॉप करेंगे, एयरवे ओपन कर सकते हैं तो एयरवे ओपन करोगे, और ब्रीथिंग और सर्कुलेशन एसेस कर सकोगे। और उसके बाद भी पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है तो दैट मीन्स पेशेंट डेड है, उसको हम कुछ नहीं कर पाओगे। बट उसके बाद थोड़ा सा कोई चेंज आप देखते हैं तो आपको इमीडिएटली उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। और बाकी उसके हिसाब से पेशेंट का मेजर जो दिक्कत है वो एसेस और ट्रीट हो गया तो हम देख के उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये फील्ड में एक मेथड है जिससे आपको ट्रायल्स करने का एक मेथड है। हॉस्पिटल के अंदर तो आपको और ज्यादा प्रोटोकॉल्स होगा जिससे आप कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट NHM का भी ट्रायल्स का प्रोटोकॉल है, ऑपरेशन गाइडलाइंस और इमरजेंसी केयर सर्विसेज में आपका ट्रायल्स का गाइडलाइंस है, जिसमें ट्रॉमा और नॉन ट्रॉमा में इन हॉस्पिटल आपको कैसे ट्रायल्स करेगा उसका एक गाइडलाइंस भी है। तो अनस्टेबल पेशेंट है तो उसको हम रेड ट्रायल्स करोगे, स्टेबल है बट उसको अब कुछ टाइम के बाद, जैसे कुछ टाइम के बाद ही ट्रीटमेंट देना है तो हम डिले कर येलो करोगे। और स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल वॉकिंग पेशेंट है तो उसका कोई छोटा सा चोट लगा होगा, उसको खाली सूचरिंग करना है, उसको हम ग्रीन करोगे। ऐसा भी हो सकता है ऑलरेडी डेड है तो वो हम ब्लैक बोलते हैं। और जो एक्सपेक्टेंट है, हमारे पास कुछ भी है उससे भी ट्रीटमेंट ठीक तरह से नहीं हो पाएगा, उसको हम एक्सपेक्टेंट या ग्रे बोलते हैं। तो ट्रैश बेसिकली फिजियोलॉजी के ऊपर होता है, पेशेंट का क्या क्या इंजुरीज है, किस तरह का मैकेनिज्म ऑफ इंजुरी है। और वल्नरेबल पॉपुलेशन जैसा एल्डरली है, बच्चों है, प्रेग्नेंट है, ये सब है तो उसका हम ज्यादा ऊपर ट्रैश करोगे, रेड ट्रैश करोगे। तो उसके हिसाब से इंजुरीज है, एयरवे में कोई इंजुरी है, ब्रीथिंग सांस लेने में दिक्कत लग रहा है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है, बर्न्स है, ये सब है तो हम रेड ट्रैश करोगे। जैसे इंजुरी एब्डोमेन में बहुत सारी इंजुरी लग रहा है, एक्टिवली ब्लीड कर रहा है या कोई चाकू लगा है, ये सब हम रेड ट्रैश करेंगे। थोड़ा सा फ्रैक्चर है, ऐसा टेढ़ा हुआ है, फ्रैक्चर है बट कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है तो उसको हम येलो ट्रैश करोगे। उसको ट्रीटमेंट चाहिए बट डिले ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। और छोटा मोटा एबरेशन है, छोटा मोटा बर्न्स है, छोटा इंजुरी है जिसको खाली सूचरिंग कर रहा है, उसको हम ट्रीटमेंट दे दोगे बट उसका लीस्ट प्रायोरिटी देखोगे। तभी आपको आपके पास जो रिसोर्सेस, क्योंकि आपका पास रिसोर्सेस बहुत लिमिटेड होता है और वो रिसोर्सेस आपको यूज करना होगा जिसका
यूटिलाइज करने से ज्यादा बेनिफिट होगा। ये लोग कुछ टाइम वेट करने से भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, बट आपका रेड प्रायोरिटी वाला पेशेंट वेट करेगा तो पेशेंट का डेथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, तो उसको आप प्रायोरिटी देना है। इन हॉस्पिटल का आपका ट्रायज डिफरेंट होता है, तो मैं ज्यादा सिनेरियो नहीं तो एक दो सिनेरियो में खाली बता देंगे। तो आपका एक पेशेंट है, फॉल फ्रॉम 2 स्टेयर्स है, माउथ फुल ऑफ ब्लड है, तो दैट मीन्स एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आपका ट्रैच रेड होगा। 2 व्हीलर राइडर है, ओपन चेस्ट वुंड है, जैसे हमने बोला सकिंग चेस्ट वुंड है, तो उसका इंजरी, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी डेंजरस है, तो उसका रेड होगा। ऐसा भी हो सकता है पेशेंट आता है चेस्ट पेन से आता है, तो चेस्ट पेन से आता है तो दैट इज अ टाइम सेंसिटिव कंडीशन, पेशेंट का हार्ट अटैक होने का चांसेस है, तो वो भी रेड है। तो इंजरी के हिसाब से, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से हम ट्रायज कर लेंगे। तो हमने अभी क्लिनिकल डिसीजन के बारे में बोला, थोड़ा सा ट्रायज के बारे में बोला, और हम अभी देखेंगे वर्क फ्लो कैसे होगा। जैसे आपको कोई इंफॉर्मेशन आपके को क्लास करना है, तो वर्क फ्लो कैसे होना चाहिए उसके बारे में मैं बोल रहा था। तो आप कोई कमांड सेंटर या कोई एक सेंटर हो, और किसी आपको कॉल करेगी कि एक घटना हुआ है, आपको वहां जाना है, तो आपका क्या क्या डिटेल्स चाहिए आपको, वो आपको पता करना है। हो सकता है वो फेक कॉल है, तो आपको कंफर्म करना है पहले कि कॉल सही है नहीं है, इवन क्या है वो आपको देखना चाहिए, क्योंकि सेफ नहीं है आप जाने का, तो यू कांट गो। अभी भी फायरिंग चल रहा है तो यू कांट गो देयर, तो आपको कंफर्म करना है कि इवन क्या है, कितना पेशेंट्स है, लगभग अप्रोक्सीमेटली आप बता नहीं पाओगे, वो ठीक तरह से बता नहीं पाओगे, बट आपको जानना होगा कि कितना पेशेंट्स होगा अप्रोक्सीमेटली, लोकेशन कहाँ है और कैसे वहां पहुंचेंगे, रूट कैसा है, नहीं तो वो रूट ठीक खराब है तो ऑल्टरनेट रूट कैसा आप पहुंचेगा, वो सब आपको पता होना चाहिए, और कितने टाइम में आप पहुंच पाओगे, टाइम ड्यूरेशन कितना टाइम में पहुंच पाएगा वो भी आपको पता करना चाहिए, और क्या क्या रिसोर्सेस आपको चाहिए होगा, लाइक एयरवे का रिसोर्स चाहिए होगा या स्प्लिनिंग का रिसोर्स चाहिए होगा, वो थोड़ा सा आपको जानकारी रहना चाहिए। और जब आप जाते हो आपको भी प्रिपेयर करके जाना होगा। आप एम्बुलेंस से जाते हो तो कौन सा लेवल के एम्बुलेंस चाहिए आपको, डी लेवल एम्बुलेंस, आईसीयू एम्बुलेंस चाहिए या नॉर्मल एम्बुलेंस चाहिए, उस एम्बुलेंस में क्या क्या चीज होना चाहिए, आपका ऑक्सीजन स्टॉक ठीक है या नहीं है, आप कितने लोग आपके साथ जाओगे, ये सब आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाना होगा। नहीं तो वहां जाके आप एक या दो पेशेंट एक्सपेक्ट करके वहां जाओगे, वहां 10 पेशेंट्स है तो आप दिक्कत हो जाएगा, तो आपको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। और सीन में जाके जैसे हमने बोला ट्रायज ही करेंगे, आप देखोगे कि किस पेशेंट को इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए, किस पेशेंट को डिले ट्रीटमेंट चाहिए, वो आप ट्रायज करोगे, और ट्रीटमेंट तो आप XABCD जैसे हमने बोला वही करेंगे, एंड आप डिसाइड करोगे कहाँ ट्रांसफर करना है। जैसे पेशेंट का रेड है, रेड कैटेगरी है, ज्यादा चोट है, तो पेशेंट को एक टर्शरी केयर सेंटर, एक अच्छा हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना होगा। बट पेशेंट को छोटा मोटा इंजरीज है, येलो या ग्रीन है, तो पेशेंट को नियर बाई क्लिनिक्स या नियर बाई सेकेंडरी मीडियम लेवल हॉस्पिटल में आपको ट्रांसफर करना होगा। तो आपको कमांड सेंटर से बात करके या आपको हॉस्पिटल से बात करके उसका डिसीजन ले सकते हैं कि वो हॉस्पिटल में वो कैपेबिलिटी है या नहीं, और वहां ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या नहीं, और आपको लॉग रोल करके शिफ्ट करना चाहिए। और आप शिफ्ट करने के टाइम भी आप थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप फ्लूइड्स, एनालिसिस, पेन मेडिकेशन वगैरह दे सकते हैं, और ये सब का डॉक्यूमेंटेशन करने का आपका प्रोसेस है तो वो डॉक्यूमेंटेशन भी करना चाहिए। और जैसे आप हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, हॉस्पिटल को भी आपको एक इंफॉर्मेशन या इंटीमेशन देना चाहिए कि आपका ये वाला पेशेंट आ रहा है, और एक आप खुद को इंट्रोड्यूस कर लो, और आप मिस्ड प्रोटोकॉल में हिस्ट्री दे दो। मिस्ड प्रोटोकॉल होता है जिसमें आप मैकेनिज्म ऑफ इंजरी बोलेगा, क्या क्या इंजरीज हुआ है वो बोलेगा, साइंस एंड सिम्टम्स क्या बोलेगा, ट्रीटमेंट क्या दिया है वो बोलेगा। जैसा एक ब्लास्ट हुआ है वो होगा मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, पेशेंट का इंजरी सस्टेन है, पेशेंट का फेस में इंजरी है, हाथ में चोट लगा है, पैर में चोट लगा, एक्टिव ब्लीडिंग है, वो हो गया पेशेंट का इंजरी सस्टेन। साइंस एंड सिम्टम्स है, पेशेंट सांस लेने में दिक्कत लग रहा है, तो दैट बिकम्स अ साइंस एंड सिम्टम्स। एक्टिवली ब्लीड कर रहा है, वो हो गया आपका साइंस एंड सिम्टम्स। और ट्रीटमेंट है, आपने ऑक्सीजन लगाया, आपने टॉर्निके लगाया, आपने स्प्लिन लगाया, ये सब आपका ट्रीटमेंट गिवन हो गया। या मिस प्रोटोकॉल से आप हैंड ओवर दे दोगे तो उससे पता चलेगा कि हॉस्पिटल में क्या क्या ठीक करके रखना है, जैसा आपका पेशेंट अराइव होता है हॉस्पिटल में क्या क्या ठीक करके रखना है, उसके बारे में आपको ऐसा कम्युनिकेट करेगा, तो हॉस्पिटल भी प्रिपेयर होके रहेगा आपका अराइवल के लिए, दे विल आल्सो बी प्रिपेयर्ड, सो दैट शुड आल्सो बी कम्युनिकेटेड। एंड आप कितने टाइम में आओगे, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल,
आप कितने टाइम में वहां आओगे और कितने पेशेंट्स हैं, इसके बारे में भी हॉस्पिटल के जानकारी दे देंगे, तो हॉस्पिटल विल आल्सो रिमेन प्रिपेयर्ड। एंड हॉस्पिटल जाने के बाद आप हैंड ओवर भी देना है, हॉस्पिटल के स्टाफ को हैंड ओवर भी देना है, और हॉस्पिटल ये पूरा चीज आपको डॉक्यूमेंट भी करना है। तो जैसे एक एग्जाम्पल, एक होटल में ब्लास्ट हो गया है, आपको कॉल किया, वो वहां जाके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आपको डिप्लॉय या आपको वहां जाना है, तो आप क्या क्या करोगे? पहले तो आप कंफर्म करोगे नंबर ऑफ पेशेंट एक्सपेक्टेड, आप पूछोगे, डिस्टेंस एंड रूट आप पता करोगे, और प्रिपेयर आपको टीम प्रिपेयर करके वहां जाओगे। वहां जाने के बाद आप सीन सेफ्टी देखोगे, एक्स एबीसीडी ट्रायज करोगे, एक्स एबीसीडी करोगे, और आप डेस्टिनेशन हॉस्पिटल कहाँ आपको लेके जाना है वो डिसाइड करोगे, तो दैट यू कैन टॉक विद द हॉस्पिटल, या आपका कमांड सेंटर में बात करके आपको डिसाइड कर सकते हैं। और एन रोड भी आप ट्रीटमेंट कुछ भी देना है तो वो दे सकते हैं, और आपका डेस्टिनेशन हॉस्पिटल से आप बात करोगे, हैंड ओवर हॉस्पिटल में आप डेस्टिनेशन हॉस्पिटल पे यू विल गिव हैंड ओवर देयर, एंड also try to also should document all these events that is happening. तो इन समरी जो हमने एक घंटे बात किया, उसमें बेसिकली मैंने बात किया है ट्रॉमा रेसिस्टेशन के बारे में, जिसमें आप सीन सेफ्टी देखोगे, उसके बाद आप एक्स एबीसीडी करोगे, जैसे एक्सैंगुलेटिंग हेमरेज, एयरवे विद सी स्पाइन कंट्रोल, ब्रीथिंग एंड वेंटिलेशन, सर्कुलेशन विद हेमरेज कंट्रोल, डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर। प्री हॉस्पिटल में आप क्या क्या करोगे, जैसे आप कंट्रोल, ब्लीडिंग कंट्रोल और टॉर्निके लगाना, एयरवे ओपन करने के लिए जॉ थ्रस्ट देना, ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन देना, ओपन न्यूमोथोरैक्स और टेंशन न्यूमोथोरैक्स के बारे में बात किया। उसके बाद आप कैसे लो ग्रोथ करके पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करोगे, एंड देन वी डिस्कस रिगार्डिंग कार्डियक अरेस्ट, थोड़ा सा कार्डियक अरेस्ट एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट, उसके बाद ट्रायज, एंड देन हमने वर्क फ्लो पैटर्न बात की। तो thank you all for listening to me, and hope if there are any questions. Thank you so much, Dr. Vineet, for your insightful and deeply relevant talk. You have highlighted almost all important aspects of on-ground emergency care, and I'm sure our first line responders can start applying right away the information what you have shared. Now we have received two questions, Dr. Vineet. Will you be able to answer, please? So one question is, thank you for the question. One question is, in CPR, when to stop? So you are in a pre-hospital scenario, and CPR is going on. So what happens is, there is no definite time नहीं है कब आपको stop करना है, but ऐसा है कि आपका टीम है, आप CPR कर रहे हैं और आप थक गया, जैसे आपने CPR किया, आप सबको क्या एक्सपीरियंस होगा कि इट इज अ वेरी टायरिंग प्रोसेस। सीपीआर करना आसान चीज नहीं है, आप एक साइकिल दो साइकिल दे दोगे तो इट इज अ वेरी टायरिंग प्रोसेस। तो जब तक आप टायर हो जाता है तब तक आप सीपीआर कर लो, नहीं तो आपका कोई हेल्प आ जाता है पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या पेशेंट को लेके जाने के लिए कोई हेल्प आता है, देन यू कैन स्टॉप सीपीआर। और पेशेंट रिवाइव होता है, जैसे आप सीपीआर करता है, पेशेंट रिवाइव होता है, पेशेंट सेंसोरियम ठीक हो जाता है, पेशेंट ठीक तरह से ब्रीथिंग स्टार्ट कर लेता है, उस स्टॉप सीपीआर। ऐसा कोई नहीं कि 10 मिनट में आप स्टॉप कर लो, 20 मिनट में स्टॉप कर लो, ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है। बट इफ यू आर अनेबल टू कंटिन्यू, इफ योर टीम इज अनेबल टू कंटिन्यू सीपीआर बिकॉज आप थक गया है, तो यू कैन स्टॉप सीपीआर। और इफ योर हेल्प हैज अराइव्ड, patient can be transported, then you can stop CPR and hand over. You shouldn't stop CPR, you can hand over and the next team can take over CPR. और अब आपका पेशेंट कॉन्शियस हो गया है, पेशेंट का रॉस्क हो गया है, पेशेंट होश ठीक में आ गया है, तो then you can stop CPR. What dose to be given in anaphylaxis? Yeah, that's a very good question. So dose for anaphylaxis, आपका adrenaline एक ampule 1 ml is 1 mg, तो इसका 0.3 to 0.5 mg आपको लेना है, और उसको IM देना है lateral side of thigh, lateral side of thigh, 0.3 to 0.5 ml या 0.3 to 0.5 mg, that is 0.3 to 0.5 ml of adrenaline IM on lateral side of thigh. Okay. Thank you, Dr. Vineet. Now we have come to the end of our session. A big thank you once again, Dr. Vineet. We know that you are very, very busy with your tight schedule, but even then you agreed to our request and for delivering your excellent session. And I also would like to thank all our participants for their active participation and also for the work they do
every single day on the front line. I would like to warmly invite you for the next session. Please remember, friends, today evening we have at 5 p.m. again another session on burns management. And I'm seeing many of you are asking in the chat box to share the PPT. Definitely, we will be sharing the link. Please stay connected with us. Thank you so much once again. And we will see you at 5 p.m. in the next our webinar series on burns management. Today's topic there. Thank you so much. Requesting all of you to stay connected. We will shortly be sharing the link of the PPT in the chat.